IIT Bombay has released the dates on which the exam for GATE 2021 will be conducted. So all those students who were in a doubt कि एग्जाम might be postponed by IIT और डेट शायद ना आए गेट की, मे बी शायद गेट ना हो, for all those students it is a big relief that the official dates have been announced. Welcome students, दीपक पांडे this side on the platform of Ingenious. और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी जो बातें हैं जो IIT बॉम्बे ने नोटिफाइड करी हैं, and the students are a little bit confused. I'm facing a lot of problems, a lot of questions from the students regarding this new kind of changes. तो थोड़ी सी उसके बारे में बातें कर लेते हैं. First of all, IIT Bombay has announced the official examination dates in the month of Feb 2021, and the dates are 5th to 7th Feb, and then 12th to 13th Feb. सो सबसे पहली बात कि एग्जाम तो होंगे, ठीक है. दोज हु वर थिंकिंग कि नहीं सर एग्जाम शायद पोस्टपोन्ड हो जाए ड्यू टू कोविड सिचुएशन, दैट इज व्हाई मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी फॉर प्रिपरेशन. दे वर लाइक कंफ्यूज्ड कि सर हम प्रिपेयर कर लेंगे और पोस्टपोन्ड हो गया तो क्या होगा. सो फॉर ऑल ऑफ देम एग्जाम डेट्स आर हियर. सेकेंडली, देर आर सर्टन चेंजेस. तो उन चेंजेस के बारे में बात कर लेंगे. बहुत ही शॉर्ट रखूंगा वीडियो को मैं, बहुत ही टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है. व्हाट आर द चेंजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, third year, the most important changes I should say that the third year students are eligible. और ये वीडियो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हिसाब से सोच के मैं बना रहा हूं बिकॉज दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ क्वेश्चंस. फाइनल ईयर स्टूडेंट वालों के लिए कुछ बदला है क्या, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. बट व्हाट अबाउट थर्ड ईयर स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, they are asking कि sir now we can appear for GATE 2021. Yes, that is one question. You can appear for GATE 2021 exam. Next point, they are asking sir कि क्या GATE 2021 में जो एग्जाम होगा, जो रैंक आएगी, वट एवर स्कोर दे आर गोइंग टू गेट, इज इट गोइंग टू समहाउ एडेड और समहाउ इट इज गोइंग टू बी नॉर्मलाइज्ड विद द गेट स्कोर ऑफ 2022 व्हेन दे आर गोइंग टू पास आउट फ्रॉम द कॉलेज? द आंसर इज डेफिनेटली नो. आप 2021 में जो भी परफॉर्मेंस करेंगे दैट विल बी अ सेपरेट परफॉर्मेंस, राइट, एंड 2022 विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, राइट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स व्हाट दे शुड डू देन? क्या गेट 2021 उनके लिए किसी भी काम का है? आई मीन किसी तरह से उनको ये फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? उससे क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, है ना? आगे किस तरह से गेट 2021 कैन बी गुड अपॉर्चुनिटी और कैन नॉट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द थर्ड स्टूडेंट्स. सो दिस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, it is possible that in GATE 2021, whatever score you are getting, 2021, whatever score you are getting, that will be valid for 3 years. Even for the third year students, I'm writing this for third year only, that will be valid for 3 years. So suppose if you are preparing well, I'm assuming right now that you are preparing well and you are getting a very good rank, it will be valid for 3 years for all the higher education, जो भी offer हो रहा है, MS, MTech, डायरेक्ट PhD, नीटी, आप जो भी ऑप्शंस इसके थ्रू हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, दैट विल बी वैलिड फॉर 3 years, मींस 22, 23, 24 तक वैलिड रहेगा. सो दैट इज वन एडवांटेज that you can use it for in the when you are passing out from your colleges, you can use this score. Secondly, what about PSUs? If you got a very good rank, can the third year students apply for PSU right now on the basis of GATE 2021? No. Because PSU only calls the final year or the appearing students. आप थर्ड ईयर के गेट स्कोर से उसी साल तो PSU में अप्लाई नहीं कर सकते. सो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स can't apply to PSUs through GATE 2021 in 2021. I'm saying that 2021 में जो PUC रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें the third year students cannot apply. Simple reasons, PSUs have their eligibility. Either you should have the degree or आपके पास क्या होना चाहिए, otherwise you should be appearing in your final semester exams. So you cannot apply in 2021. What about 2022? See, some PSUs, I'm not saying the 100% sure, and I'm not saying that every PSU is going to do this. Some PSUs may recruit in 2022 on the basis of
GATE 2021. Like this year, BIS has introduced its recruitment, and they are hiring on the basis of this 2018, 2019, 2020. राइट? तो जब आपका गेट स्कोर वैलिड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन केस इफ सम PSUs is hiring for in GATE 2022 on the basis of GATE 2021. So that is one more utility of this GATE 2021 for third year students. What else? It will be serving as, this exam paper for the third year students will be serving as mock test, and mock test with real feel, real preparation, real feel. You can feel the GATE 2021 paper, prepare yourself in a best way for GATE 2022. Fine. हो सकता है आप GATE 2021 में आउट ऑफ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करो एंड यू आर गेटिंग अ डबल डिजिट रैंक, अ सिंगल डिजिट रैंक इन द GATE this 2021 ओनली, बिकॉज थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी कई ऐसे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे प्रिपेयर कर रहे हैं एंड देयर प्रिपरेशन इज वेरी वेल, इट्स गोइंग वेरी वेल. होपफुली वो 2021 में ही सेकेंड या 2 डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक ले आते हैं. ऑब्वियसली if you are having a 2 or single digit rank in 2021, your confidence level will be like on the 7th heaven, on the 7th sky, right? आप 2022 में भी डेफिनेटली सिंगल डिजिट के लिए काम करोगे. या कई बार ऐसा होता है, कई बार देखो क्या होता है, जब आपके पास एक बार सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक आती है, मेनी टाइम्स यू आर लाइक कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग फॉर अ PSU, आई विल बी गोइंग फॉर IIT बॉम्बे, आई विल बी गोइंग फॉर IC बैंगलोर, आई विल बी गोइंग फॉर NITI बॉम्बे, और आप अपने स्कोर को बड़े आराम से यूज कर सकते हो. सो एक तो चीज ये है कि इट विल बी सर्विंग एज अ मॉक टेस्ट विद रियल फील. इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं अभी तो सर लेट हो गया, मुझे प्रिपेयर नहीं करना, तो इट विल बी सर्विंग एज अ मॉक टेस्ट फॉर यू. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या थर्ड ईयर के लिए कुछ और यहाँ पे नई बातें हैं और कोई नई बातें नहीं? यस, वन मोर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग, सर व्हाट अबाउट द 2 सब्जेक्ट्स, जो 2 सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. In GATE notification, the official release of IIT Bombay, they have used the word subjects, but these are not actually subjects. That is humanities and social sciences and environment. I'm not using the exact code, and humanities. Okay, these are the 2 subjects. क्या ये आपको पढ़ने पड़ेंगे? If you are preparing for chemical, mechanical, electrical, क्या ये आपको पढ़ना पड़ेगा? No. These are different branches. Like GATE is being conducted in electrical engineering, in chemical engineering. Similarly, GATE authorities are trying to give opportunity to more other students. They are increasing their domain. अपना डोमेन बढ़ा रहे हो, और वो गेट से और भी ब्रांचेस का गेट कंडक्ट करा के उनको भी अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं. हो सकता है in the upcoming future the government organizations may use, government means I'm not talking about the PSUs, I'm talking about the non-technical government organization. They may use GATE score for recruitment. That is why they have created 2 more branches. These are not subjects. तो क्या आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा इनमें से? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए है ही नहीं, इसका आपसे कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट की सर और क्या नया आया गेट में? वन मोर थिंग, दिस GATE 2021 रिलीज हैज बीन नोटिफाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो गया ना, दे आर कॉलिंग इट सब्जेक्ट्स, बट दे आर नॉट सब्जेक्ट्स, दे आर एक्चुअली ब्रांचेस. तो आपको तो इससे कोई मतलब नहीं है. क्लियर ना? थर्ड ईयर को कोई मतलब है ना, फाइनल ईयर को इससे कोई मतलब है. व्हाट एल्स you are eligible for? Actually eligibility conditions have been changed. So this is one change. And the second thing, earlier क्या होता था कि आप एक ब्रांच से गेट दे सकते थे. You can also now appear simultaneously. I mean simultaneously means appear in 2 branches in the same year. 2 branches. Suppose you are giving GATE from chemical along with this GATE in 2021 only. In the same year, you can also give GATE from some other branch. Which branch? That is yet to be notified. IIT आपके लिए कुछ proper pair of branches बना के देगी जिसमें आप दोनों में गेट दे सकते हैं. फायदा ये हुआ, देखो ये जो 2 ब्रांचेस की गेट का जो एक नया आइडिया निकाला, इसका फायदा उनको होगा जो हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं. इसका फायदा PSUs वालों को नहीं होगा. ध्यान से बात सुनो कि 2 ब्रांचेस में आप गेट दे सकते हो. मेरे पास कई फोन आए कि सर मैं केमिकल का हूं, मैं और किस ब्रांच में गेट दूं. एक तो सबसे पहली बात सुनो, सपोज IIT अलाउज यू टू गिव द गेट ऑफ मैकेनिकल. यू आर फ्रॉम केमिकल एंड IIT अलाउज यू टू गिव द गेट ऑफ मैकेनिकल. आप मैकेनिकल का गेट देना चाहते हैं, भाई पढ़ना भी तो पड़ेगा.
And of course, in chemical and mechanical, 2 or 3 subjects are common. But what about rest of the subjects? अपना तो पढ़ा नहीं जा रहा, आप वो कहां से संभालेंगे? या तो ऐसा सब्जेक्ट हो, देखो आपको देने से किसी ने नहीं रोका, आप गेट दो दूसरी ब्रांचेस में, पर पढ़ना पड़ेगा. हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट? क्या आपको लग रहा है कि नहीं अपने ब्रांच में तो मेरा प्रिपरेशन हो नहीं रही, वहां तो प्रिपेयर करने के लिए मूड बन नहीं रहा, सीनियर्स ने कह दिया कि नहीं पढ़ो और मैं नहीं पढ़ रहा, और दूसरे ब्रांचेस में आपका इंटरेस्ट जा रहा है ना? तो ये आपके लिए काम का नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द sets in which you can appear, I mean if you are from chemical, then in which other branch you can appear, how many other branches you can appear, which one, I mean chemical, mechanical, chemical, electrical appear हो सकता, that is yet to be notified. तो एक बार वो नोटिफिकेशन आ जाए. दूसरी बात ये, सपोज यू आर प्लानिंग कि सर a lot of recruitments are there in mechanical branch or electrical branch, so I am from chemical and I am going to give gate from electrical branch. आपने gate electrical से दे दिया. Suppose you got rank 1 in electrical engineering and you applied for a PSU. You know that PSU have proper recruitment criteria and उनकी recruitment में there is a condition. You should have the proper rank. Apart from that, you should have the degree in the concerned branch. तो अगर आप इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी पे नौकरी पाना चाहते हो तो भाई आपकी डिग्री भी इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए. तो रिक्रूटमेंट में इस चीज का रिक्रूटमेंट में कोई फायदा नहीं होगा अनलेस कोई पीएसयू ऐसी आ जाए जो बोले कि नहीं मुझे तो बस गेट स्कोर से मतलब है, मुझे आपकी पीछे डिग्री से कोई मतलब नहीं है. ऐसा नहीं होता. इफ पीएसयू इज रिलीजिंग सीट्स फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, दे want you to have a degree as well in chemical engineering or associated branches, right? Polymer, petrochemical, petroleum, all that. बट आप सोचोगे कि सर दूसरी ब्रांच में ज्यादा वैकेंसी आती है, मैं वहां पे गेट दे दूं. 2 मुश्किल है. पहली मुश्किल तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा एंड आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्ट कॉमन नहीं मिलेंगे. 7-8 सब्जेक्ट नए पढ़ने पड़ जाएंगे. दूसरी बात ये कि पीएसयूज में कोई फायदा नहीं होगा आपको. हाँ, हायर एजुकेशन के लिए, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर हायर एजुकेशन, if you're opting for some different kind of specialization in masters, then you can appear for gate of other branch. पर कुल मिला के हेडक आपकी ही होगी कि उस ब्रांच का गेट कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो this was one more change. So this change was about the number of branches in you can appear. The 2 new branches that has been added, which makes the total number of branches equal to 27. So every year, gate, देखो gate is a standard exam. Everyone knows the standard of gate, and every year new recruitments are being recruitments are being conducted through gate. हर कोई चाहता है कि गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट लिया जाए. Why? Because the standard of the exam is good and as well as the transparency in the exam is good. Fine? Okay, so these were some small changes. अच्छा, कुल मिला के कोई बहुत बड़ी बात है क्या? क्योंकि क्या होता है, देखो थर्ड ईयर के बच्चों को चीजें भी थोड़ी क्लियर नहीं है. They don't know much about gate. कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है. आपके लिए एक चीज है, आपको एक मौका और दे दिया है बीच में 2021 का गेट देने के लिए. बहुत जरूरी बात है. जो सबसे जरूरी वो यही है कि आपके पास एक मौका आ गया. जो थर्ड ईयर वाले अभी सुस्त होके बैठे थे, कछुआ चाल से तैयारी कर रहे थे, सुस्त रफ्तार से तैयारी कर रहे थे कि सर नहीं अभी तो आराम से चलेंगे, अभी तो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे 1 महीने में, राइट? मैंने भी कहा था कई बार कि नहीं आराम से चल सकते हो, बट अभी नहीं, मैंने जून में कहा था कि आप थोड़ा आराम से चल सकते हो, है ना? बिकॉज यू हैव टू अपियर फॉर गेट 2022 ऑफ कोर्स. बट बिकॉज गेट 2021 अब उनको एलिजिबल कर दिया है, तो यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड, राइट? सो दिस वर अबाउट द चेंजेस. डेफिनेटली शॉर्ट वीडियो रखना चाहता था मैं, इसलिए इसमें और बातें भी नहीं करेंगे. और आगे की बातें करने के लिए यू विल जस्ट ट्यून टू आवर चैनल, है ना? आप आगे देखोगे कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा.